Hello all my dear students. Today I am here with a very important topic for CA Foundation students, particularly for the subject of business laws, business correspondence and reporting, which is also known as BCR. Now as we know that this particular subject of law is the only theory paper that we have in CA Foundation which is subjective in nature. Also, because CA Foundation people are going to write a subject of law for the very first time in life. So that is why you must be facing lot of problems at this particular point of time. Okay, problems such as कि मैम हमको आता तो सब है पर हम इसको लिखे कैसे. Questions such as how to write the paper, how to present the paper, how to make the paper look more professional, how to manage time, because in a matter of 3 hours we have to write down business laws also, which comprises of 60 marks, and we have to write English also, which comprises of 40 marks. So this can be a task for many students. So in order to make it easier for you, I have come up with some exam presentation tips for you all for today. The first thing that I will concentrate on is your time management. Okay, now as I mentioned earlier कि 3 घंटे का पेपर है, 60 मार्क्स का लॉ भी लिखना है और 40 मार्क्स का इंग्लिश भी लिखना है. Now many of you students, if you have given any test series yet, which is very advisable for you all before you all go in for your final exam, you all must have observed this particular thing, or this thing must have cropped up in your mind कि मैम हम लॉ का पेपर पहले अटेम्प्ट करें या इंग्लिश का, whether I should attempt law first or whether should I attempt English first. So let me tell you, my dear students, according to me, okay, it is my personal opinion and it is my personal suggestion that you should first attempt business laws in your examination. ओके ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ. बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ये जो बिजनेस लॉज का सब्जेक्ट है विच इज़ फॉर 60 मार्क्स इन योर CA फाउंडेशन, दिस इज़ अ वेरी हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक्निकल होने के कारण ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है. ओके, वाई इट इज़ वेरी स्कोरिंग इज़ बिकॉज लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप कोई चीज़ ब्लफ नहीं कर सकते हो. ओके, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग, यू डोंट नीड टू ब्लफ इन द एग्जामिनेशन. अगर आपने वो एक्ट पढ़ा है, अगर आपने वो सेक्शन पढ़ा है, देन देर आर 90% चांसेस, 99% चांसेस दैट यू आर गोइंग टू डू वेल इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, यू आर गोइंग टू डू वेल इन दैट पर्टिकुलर आंसर. तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सोचने में नहीं जाएगा. दैट इज़ the reason why I am saying that because law is highly technical and because it is highly scoring, it should be something that should be attempted with first. Okay, second thing is that there are two types of questions that will come in law. First, it is either a direct question that they will ask, or second, it is either a case study based question that they will ask. Over and above this, there is nothing that they can ask you in law. Now direct questions कैसे attempt करना है, case studies को कैसे लिखना है, ये तो हम आगे देखेंगे ही. But what I am trying to tell you is these are the only two things that they are going to ask you in law. तो मेरा ऐसा मानना है कि बिकॉज लॉ इज़ हाईली टेक्निकल, इसको अगर हम पहले सॉल्व कर लेते हैं तो पहले 1.5 आवर में वी कैन कीप आवर टारगेट दैट 60 मार्क्स का लॉ जो है हम इसको ख़त्म कर सकते हैं. However, 1 hour 30 minutes can also extend to 1 hour 40 minutes, 1 hour 45 minutes maximum. But however, we have to keep in mind that 1 hour 45 minutes से ज़्यादा हमको लॉ के लिए नहीं लेना है, because after that we have to attempt English जो कि पूरे 40 मार्क्स का होने वाला है. Okay, so once you are done with law in 1.5 hour, then we can go ahead with English, which comprises of 40 marks. Now there must be questions in your mind कि क्या English scoring है, क्या English time consuming है. Yes, my dear friends, let me tell you a very important aspect of your English paper, that English in itself is a little difficult to score. Why? Because English जो है
इंग्लिश में कभी हमको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ दे इवन आस्क यू टू राइट अ लेटर, और इफ दे आस्क यू टू राइट एन आर्टिकल, और इफ दे आस्क यू टू राइट एन essay for 5 marks, the maximum marks, highest marks that a person could score in English in that particular section would be 3.5 out of 5. तो जिस इंसान ने बेस्ट essay और बेस्ट लेटर लिखा होगा उसको 3.5 out of 5 मिलेगा, उससे ज़्यादा इंग्लिश में मिलता नहीं है. बिकॉज दैट इज़ द थिंग अबाउट लैंग्वेजेस में उससे ज़्यादा आपको मार्क्स नहीं मिल सकता है. दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग दैट English is a little difficult to score. Okay, and second thing that I'm saying that English is a little bit time consuming. Why it is time consuming? Because English में ऐसे questions आएंगे such as unseen passages which you would be seeing for the very first time, जिसकी difficulty level थोड़ी सी high हो सकती है. Then there will be questions based on summary writing, questions based on article writing, questions based on precis writing, questions based on letter writing. तो ये जो सारा section आता है English के paper में, it is a bit time consuming. Why? Because you have to think a lot and then you have to write in this particular section. आपको इसमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है. For example, if they give you an article writing on the current COVID-19 pandemic situation which is going on in your country, तो थोड़ा बहुत आपको facts and figures accumulate करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा, after which you are going to write the paper. That is why it is my personal opinion and my personal suggestion that पहले आप जो technical section है law का उसको हम ख़त्म कर लेते हैं, and after that is done in 1.5 hour you can move on to English. Now, जब आप इंग्लिश भी सॉल्व करने लो, ओके, देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल कि 1.5 आवर में आपका लॉ जब हो जाता है और आप इंग्लिश लेते हो सॉल्व करने के लिए, व्हाट यू हैव टू डू इज़ इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स, यानी कि 1.5 आवर के बाद, ओके, नेक्स्ट 30 मिनट्स जो आपके पास है, यू हैव टू थिंक कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन कौन सा है, एंड यू हैव टू ऑप्ट फॉर दैट. What that can be? It can be parts of grammar. For example, grammar में जो चीज़ें आती है, for example, you can have something like active voice, passive voice, you can have something like direct speech, indirect speech, you can have some questions based on tenses, you can have some questions based on parts of speech, which in itself is very scoring. तो ये questions को हमको target करना है next 30 minutes में. Apart from that, you will have questions based on unseen passages. अगर आपको लगता है कि unseen passage बहुत easy है, बहुत simple है, बहुत lower level का है, तो even that can be dealt with in the next 30 minutes. And also questions based on vocabulary. Now ऐसा देखा गया है past exams में that vocabulary में काफ़ी सारे questions जो institute पूछती है वो अपने खुद के module में से ही है. Okay, so vocabulary is something कि अगर बहुत easy आ जाता है तो it can be dealt with in the next 30 minutes. तो पहले law solve करने के बाद जो next 30 minutes हमारे पास बचते हैं उसमें हमारा यही target होना चाहिए कि maximum marks हमको English paper में score करना है. Okay. But however, my dear friends, let me tell you one important thing. Okay, given the fact that I have told you that first आपको preference देना चाहिए law paper solve करने के लिए, next आपको preference देना चाहिए English paper solve करने के लिए, but however there is a thing that I want you to note down over here कि in spite of this, अगर उस मोमेंट पे आपको लगता है दैट इंग्लिश का पेपर जो इंस्टीट्यूट ने पूछा है वो बहुत ज़्यादा लोअर लेवल का है कंपेयर टू व्हाट यू हैव स्टडीड इन इंग्लिश, वो बहुत ज़्यादा इजी है, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इट इज़ समथिंग जिसमें आपको लगता है कि 40 मार्क्स में से शॉर्ट मुझे 30+ तो मिल ही जाएंगे, देन लेट मी टेल यू माई डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए कि पहले आप इंग्लिश सॉल्व कर दो एंड 40 में से 30+ लाने की आप यहीं पर कोशिश कर दो. ओके, बिकॉज आर टारगेट ओवर हियर इज गोइंग टू बी हमको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है, और अगर उस टाइम पे आपका दिमाग आपको ये बोलता है कि इंग्लिश इज़ वेरी इजी, देन आई सजेस्ट दैट यू शुड गो अहेड विथ इंग्लिश. Okay, next let us talk a little bit on how to write the paper. ओके, अब इस पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे कि हाँ एग्ज़ाम में पेपर लिखना कैसा है. लेट मी गिव यू सम टिप्स ऑन हाउ टू राइट द पेपर. ओके, सबसे पहले लेट मी गिव यू टिप्स ऑन बिजनेस लॉज. नाउ बिजनेस लॉज जब आप लिखते हो तब एक क्वेश्चन सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा आता है कि मैम इज़ इट मैंडेटरी टू कोट सेक्शन नंबर्स एंड रेलिवेंट केस लॉज इन आवर पेपर.
बिकॉज इट इज़ अ सब्जेक्टिव पेपर? क्या हमको सेक्शन नंबर्स एंड केस लॉज लिखने की ज़रूरत है? लेट मी टेल यू माई डियर फ्रेंड्स, अगर आपको सेक्शन नंबर एंड केस लॉ याद है एग्जैक्ट एज इट इज़, then there is no harm to quote it in the paper. In fact it will give you an added advantage अगर ये आप पेपर में जाकर quote करते हो. But here let me tell you one important thing, that if you are confused between any two sections, if you are not sure about the section number, then in that case I would suggest कि आप section numbers exam में quote ना करो, because it will give a very bad impression, it will give a negative impression about your paper to the examiner. For example, अगर आपको एक आधा section number quote करना है और अगर आप गलती से कोई और section quote कर देते हो, तो इसका मतलब ये examiner को ये पहुंचाता है कि जो section लिखना था वो section भी इस बंदे को नहीं आता, and apart from that the other section that he has quoted wrong, वो section भी उसको नहीं आता है. Okay, so in spite of writing the entire provision right, in spite of answering the entire case study right, it may so happen that you will not get marks for that particular case study. So here I urge to you all that only if your section number is absolutely right, only if your case law is right, only then you can quote that in the examination. Okay, now if you know the particular section number, how to write it in the examination? आप examination में जाकर लिख सकते हो as per section dash of the Indian Contract Act of 1872. If you know the exact section number, you can write it this way. If you do not know the exact section number, तो हम क्या लिखें? मैम हमको section तो नहीं याद है पर हमको provision तो याद है, तो in that case you can write down as per the relevant sections of the act, whichever act you are writing, say as per the relevant sections of the Indian Contract Act of 1872. अगर मैं केस लॉ की बात करूँ तो अगर आपको एग्जैक्ट केस लॉ याद है कि किस केस लॉ में कौन सा जुडिशियल डिसीजन दिया गया है, देन इन दैट केस यू कैन राइट डाउन एज डिसाइडेड इन द केस ऑफ से सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड. जो भी डिसीजन आया वो आप कोट कर सकते हो. अगर आपको केस लॉ का नाम याद नहीं है तो यू कैन सिंपली राइट इट सेइंग दैट एज स्टेटेड इन द जुडिशियल डिसीजंस. ओके, एंड फाइनली आपको यही याद नहीं है कि वो पर्टिकुलर सेक्शन आपने पढ़ा है या वो पर्टिकुलर केस लॉ आपने पढ़ा है, वेदर दैट इज अ सेक्शन और वेदर दैट इज अ केस लॉ, यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट दैट इन द एग्जाम. तो क्या लिखे हम? Whether should I write as per relevant sections of the act? Whether should I write as stated in the judicial decisions? No, in that case I will simply write down saying as stated in the laws. Okay, so this is what I will do in the examination. Next, आपको शायद एक डाउट आ सकता है एग्जाम में कि मैम केस स्टडीज तो बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, बट हम केस स्टडी का आंसर कैसे लिखें? Okay, so let me answer that to you. Now whenever you have a case study in the exams, case study का आंसर हमको देना है 4 parts में. And what are those 4 parts? The first part that you have to write in the case study is facts of the case. Okay, so whatever XYZ case law has been given in your exams, okay, the first point that you will write in your answer is facts of the case. तो जो भी आपको question में case study frame करके दिया है, you have to write that case study in 1 or 2 sentences, not more than that. Okay, यहाँ पे आपको याद रखना है कि इतना बड़ा केस स्टडी आपको दिया है, इमोशनल होके पूरा का पूरा केस स्टडी हम आंसर शीट में छाप दे, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज दैट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम. तो बेसिकली यू हैव टू राइट दैट पर्टिकुलर केस स्टडी इन 1 or 2 sentences and you have to finish off the facts of the case. ओके, तो इससे हम एग्जामिनर को क्या बता रहे हैं? इफ़ यू आर राइटिंग डाउन फैक्ट्स ऑफ द केस, तो हम एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि आई हैव अंडरस्टूड व्हाट द सिचुएशन इज, आई हैव अंडरस्टूड व्हाट दिस केस लॉ इज अबाउट. Okay, clear है? Now second, what I will write down in my second step is I will write down the provision of law and I will write down the reference to case law. तो जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया है कि मुझे provision of law लिखना है, that is as per section dash of the Indian Contract Act 1872 और as per section dash of the Indian Partnership Act of 1932. Okay, whatever that particular section is saying, वो section को आपको इस particular लाइन में, इस पर्टिकुलर पॉइंट में कोट करना है.
ओके एंड आफ्टर दैट इफ देर इज अ केस लॉ दैट कम्स टू योर माइंड, तो आप यहाँ पे केस लॉ को कोट कर सकते हो, और केस लॉ याद नहीं आता है तो यू कैन राइट डाउन सिंपली एज पर द जुडिशियल डिसीजंस, ओके वट एवर इज द जुडिशियल डिसीजन, आप यहाँ पे उसको लिख सकते हो। ओके सो बेसिकली हम सेकेंड पॉइंट में क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट एज पर द फैक्ट्स दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ओके दिस प्रोविजन ऑफ लॉ इज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे हम एग्जामिनर को कोट कर रहे हैं कि देखो भाई हमने पूरा एक्ट पढ़ा है एंड दिस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ लॉ आई हैव स्टडीड एंड आई कैन कोट इट डाउन ओवर हियर, दिस पर्टिकुलर सेक्शन आई हैव स्टडीड एंड आई कैन कोट इट डाउन ओवर हियर, दिस पर्टिकुलर केस लॉ I have studied and I am quoting it down over here. Again, if you don't remember the section number, if you don't remember the case law's name, I urge to you, do not write it in the examination. Better than writing something wrong, it is better that you do not write it in the examination. Okay, the next thing that we have to write in the case law is analysis of case study. तो पहले पॉइंट में तो हमने facts of the case लिख लिया, सेकेंड पॉइंट में तो हमने provision of law लिख लिया। नाउ यू हैव टू एनालाइज दैट, दैट मीन्स कि फैक्ट्स ऑफ द केस जो दिया है और लॉ में जो लिखा है प्रोविजन, उसको हमको एनालाइज करना है, उसका हमको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना है इन द थर्ड पॉइंट। ओके, सेइंग दैट क्योंकि इस केस में ऐसा ऐसा हुआ और क्योंकि लॉ में ऐसा ऐसा लिखा गया है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द एनालिसिस, इसका नतीजा क्या होने वाला है, उस लॉ को, इस पर्टिकुलर प्रोविजन को उस केस में हम कैसे अप्लाई करेंगे, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन इन एनालिसिस ऑफ केस स्टडी। Okay, and once you are done with that, the fourth point that you are going to write is the conclusion. Okay, तो जो भी आपने analysis में लिखा है, okay, you have to write down 1 or 2 sentences in the conclusion saying that ऐसा ऐसा इस act में हुआ है, that is why we will conclude with this. So conclusion again, it will not go more than 2 points, 2 sentences. So I hope you are clear with this idea how to answer a case law in the examination. Then coming to how to answer a direct question. I told you कि लॉ में 2 ही टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एक तो आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, एक तो आएगा केस लॉ। केस लॉ को कैसे आंसर करना है ये तो हमने देख लिया, 4 पार्ट्स में आंसर करना है, फैक्ट्स ऑफ द केस, प्रोविजन ऑफ लॉ एंड रेफरेंस टू द केस लॉज इफ एनी, एनालिसिस ऑफ द केस लॉ एंड देन कंक्लूजन, ये 4 पार्ट्स में हमको आंसर करना है। देन व्हाट इफ यू गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम्स। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आता है, फॉर एग्जाम्पल दे विल आस्क यू व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, तो इस डायरेक्ट क्वेश्चन को मुझे एग्जाम में कैसे आंसर करना है। सपोजिंग इफ दे आस्क यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर 5 or 6 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, देन मैं डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी तो नहीं लिख सकती हूँ। वाई? बिकॉज इफ इट इज़ अ 6 मार्क्स क्वेश्चन, तो मुझे ज़रूरी होता है कि कोई मैं इंट्रोडक्शन लिखूँ, कोई मैं conclusion लिखूँ। ओके, सो आई हैव टू राइट डाउन समथिंग इन द इंट्रोडक्शन अबाउट अ कंपनी। Okay, and then I will go on to write down the 6 different characteristics of the company, and after that I will give some suitable conclusion and then I will end it over there. ओके, तो अगर एक 6 मार्क का बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आता है तो ज़रूरी होता है आपके लिए दैट यू हैव टू गिव सम इंट्रोडक्शन, यू हैव टू गिव सम कंक्लूजन। ओके, अब्रप्टली हम क्वेश्चन नहीं स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, दैट इज़ वाई इट इज़ प्रेफरेबल दैट यू गिव सम इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ओके, और उसके बाद जो मेन बॉडी मैं लिखूंगी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आई राइट डाउन द मेन बॉडी इन पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे सपोजिंग 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी मैं जो लिखती हूँ, तो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स के 6 पॉइंट्स मुझे बनाने पड़ेंगे। आई हैव टू अंडरलाइन दोज पॉइंट्स एंड देन आई हैव टू एक्सप्लेन दोज पॉइंट्स ओवर देयर। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट आई विल गिव यू सम टिप्स अबाउट इंग्लिश। ओके, लॉ के लिए तो मैंने टिप्स दे दिया कि लॉ में डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे आंसर करना है, लॉ में केस स्टडीज़ कैसे आंसर करना है, बट व्हाट अबाउट इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, द फर्स्ट टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज़ ऑलवेज फोकस ऑन फ्रेमिंग सिंपल सेंटेंसेज। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि आर इंग्लिश इज़ वेरी वीक, दैट इज़ वाई हम बहुत हाई फंडू सेंटेंसेज बनाने जाते हैं एग्जाम में, बट व्हाट हैपन्स इज ग्रामेटिकली हम इनकरेक्ट हो जाते हैं एंड दैट गिव्स अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। ओके, तो आई प्रिफर, ओके, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल दैट प्लीज़ मेक सिंपल सेंटेंसेज इन द एग्जाम्स, जिससे आपको सोचने के लिए टाइम भी कम लगे। ओके, एंड ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग ग्रामेटिकली राइट वुड बी हायर। ओके,
So make simple sentences. The second thing I would like to tell you is always use correct grammar in the exam. It is an English paper, okay? Examiner को ICAI को ये देखना है कि आपका grammatical correctness कितना है, and that is why I have said that the attractiveness of correct grammar cannot be overstated. अगर English के पेपर में आप बार बार grammatical mistakes कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा chances है कि 40 में से English के marks आपके बहुत कम आ जाएंगे. ओके, सो ऑलवेज यूज करेक्ट ग्रामर. इसके लिए मैंने कहा है कि सिंपल सेंटेंसेस यूज करना टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट. एंड वन मोर सजेशन दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज दैट इंग्लिश के पेपर में यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेक योर पेपर स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अदर्स. एंड हाउ कैन यू मेक योर पेपर स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अदर्स? मैंने ऐसा क्यों कहा है इज बिकॉज एक एग्जामिनर के पास हज़ारों पेपर्स आते हैं चेक करने के लिए और हर किसी ने एक ही चीज़ लिखी है एग्जामिनेशन में, एंड दैट इज़ वाई इट कैन बिकम वेरी बोरिंग फॉर द एग्जामिनर ऑल्सो टू चेक दीज थिंग्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर लॉ का पेपर चेक कर रहा है तो लॉ के पेपर में तो कोई स्कोप नहीं है टू फॉर यू टू बी वेरी इनोवेटिव, फॉर यू टू बी आउटस्टैंडिंग. जो भी प्रोविजन में लिखा है आपको वो जाके एग्जाम में लिखना ही है और एग्जामिनर को उसको करेक्ट करना भी है. बट कभी कभी जस्ट try to sit in the chair of the examiner and try to judge this particular scenario कि हज़ारों पेपर्स आपके पास आने वाले हैं, हज़ारों पेपर्स में वही सेक्शन वही प्रोविजन अगर कोट किया है तो इट बिकम्स लिटिल बोरिंग फॉर द एग्जामिनर टू चेक द पेपर्स ऑल्सो. तो यहाँ पे यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक योर पेपर आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अदर्स इन दिस इंग्लिश सेक्शन. ओके, पार्ट बी जो कि इंग्लिश सेक्शन होता है, यहाँ पे आप कोशिश कर सकते हो कि आपका पेपर थोड़ा बहुत अलग रहे बाकी लोगों से. एंड हाउ यू कैन डू दैट? यू कैन डू दैट इन letter writings, you can do that in essays, you can do that in pressay writing, you can do that in article writing. तो यहाँ पे you can make sure that whatever ideas you are going to give in the paper, they should be a little out of the box. Okay, अगर बाकी सारे लोग एक ही चीज़ लिखने वाले हैं तो you have to make sure that you write down something unique, you write down something innovative, you make your paper a little more interesting for the examiner than the others. So this is what we can do in English. Apart from that, let me give you certain general tips for your paper. This would be for law as well as for English. तो law के बारे में तो मैंने कुछ tips दे दिया, English के बारे में भी मैंने आपको कुछ tips दे दिया. Now I want to give you certain general tips. The first one would be पूरे पेपर में just make sure that you underline the key words. Okay, जिस पेन में आप लिख रहे हो उसी पेन से as and when you are writing try to underline the key words. Okay, अगर आप law लिख रहे हो तो law में अगर आप points लिख रहे हो, अगर आप characteristics of company लिख रहे हो, जैसे मैंने कहा कि 6 characteristics if you are writing, so just make sure कि each characteristic को आप underline करो. Okay, each point को आप underline करो, ना कि just law. Even when you are writing English paper, just try to underline the main things. For example, unseen passage का आंसर अगर आप लिख रहे हो तो unseen passage के आंसर में जो की वर्ड्स है जो आपको लगते हैं उसको अंडरलाइन करो. अगेन ओवर हियर माय इंटेंशन इज टू मेक द पेपर सिंपल फॉर द एग्जामिनर टू चेक. जितना ज़्यादा आप पेपर एग्जामिनर को सिंपल करके देते हो उतना ज़्यादा मार्क्स वो आपको यहाँ पे देगा. वाई? बिकॉज ही हैज़ अ लॉट ऑफ पेपर्स टू चेक. So that is why if you are making it interesting for the examiner, then the examiner is going to award you with more marks, which is going to be an added advantage for you. तो ये चीज़ आप याद रखोगे ना ही सिर्फ CA फाउंडेशन में बट CA इंटर और CA फाइनल में भी ये चीज़ काम आएगी, that you have to underline all the keywords in the examination. The next tip that I want to give you again, which you have to remember till your CA final level, that you have to answer in points. आप अगर paragraphs में answer कर रहे हो इस level पे, it is not at all acceptable. Examiner के पास इतना time नहीं है कि वो बैठ के paragraph पे paragraph पढ़ता जाए. तो first of all you have to make sure that you write the answer in points, और उसके बाद भी आप जो points में लिख रहे हो वो भी आपको underline करके देना है. The next thing that you have to keep in mind is do not mix part A and part B. Part A of your paper is going to be business laws. Part B of your paper is going to be business correspondence and reporting. तो ये दोनों parts को आपको mix नहीं करना है. अगर आप बोलते हो कि मैं part A का question number 1 पहले लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं part B का question number 1 जो कि शायद unseen passage है वो लिख लेता हूँ, उसके बाद again I will go on to part A and I will write
डाउन द नेक्स्ट केस स्टडी दैट इज गिवन देयर, और फिर मैं पार्ट भी लिख लेता हूँ. ऐसा मुझे नहीं करना है एग्जाम में. अगेन द इंटेंशन इज दैट आई डोंट वांट टू मेक इट मोर कंफ्यूजिंग फॉर द एग्जामिनर. एग्जामिनर को क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए पार्ट बी इधर उधर करना पड़ेगा. ही इज गोइंग टू बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड विथ योर पेपर. सारा फ्रस्ट्रेशन आपके पेपर पे निकल जाएगा एंड इन दी एंड आपको लॉ में भी कम मार्क्स मिलेंगे और इंग्लिश में भी कम मार्क्स मिलेंगे. दैट इज वाई आई अर्ज टू यॉल टू नॉट मिक्स पार्ट ए एंड पार्ट बी. Then this thing you have to keep in mind that in order to make your paper look more professional, what you have to do is you have to write down each main question on a new page. For example, अगर मैंने पार्ट A स्टार्ट किया है तो पार्ट A का क्वेश्चन नंबर 2 में अगर लिख रही हूँ तो पार्ट A का क्वेश्चन नंबर 2 में से 4 क्वेश्चंस और है सब क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं पूरा पहले कंप्लीट करूँ एंड देन आई मूव ऑन टू से क्वेश्चन नंबर 5. देन आई मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1. तो अगर मैं एक मेन क्वेश्चन पहले ले रही हूँ तो मैं पूरा मेन क्वेश्चन एक बार फिनिश करूँ एंड देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो दैट द मेन क्वेश्चन आई विल राइट इट डाउन ऑन अ न्यू पेज to make it little simple for the examiner. Okay, so these are certain tips from my end. Okay, I hope you all give certain test series before you go and appear for your main exams, because test series will always tell you कि where we are lacking. Okay, कहाँ पे हमको ज़्यादा वर्क करना है, क्या टाइम मैनेजमेंट बराबर से हो रहा है या नहीं, कितने मार्क्स मिल रहे हैं, अगर कम मार्क्स मिल रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. Okay, so all these are the things that can be dealt with only if you all give certain test series before you go on for your main exams. Okay, so finally I can tell you that though your exams have been postponed, I urge you all to study very well. I urge you all to give certain tests. I urge you all to take things very seriously, and I hope that you all come up with flying colors. So all the very best to you all, and take care. See you guys.